آپ پاک روح کو کیا سمجھتے ہیں کہ پاک روح کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے کہ پاک روح کیا ہے؟ پاک روح ہمارا مددگار۔ آمین۔ پاک روح ہمارا مددگار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگوں کے پاک روح کے بارے میں مختلف کنسیپٹس ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، لیکن یہ ایک ذات یا ہستی نہیں ہے۔ وہ اسے ایک زوردار طاقت، ایک قوت تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن وہ اسے ایک شخصیت نہیں سمجھتے کہ پاک روح ایک شخصیت ہے۔ تسلیم کے 3 اقنوم ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ خدا باپ، دوسرا خدا بیٹا، اور تیسرا خدا روح القدس۔ جب ہم پاک روح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات آتی ہے کہ شاید جیسے کوئی پہلے کے جیسے کوئی ہوا ہو، ہوا کی طرح لگا لیں، آگ کے شعلے کی طرح لگا لیں۔ اس طرح ہمارے ذہن میں ایک طاقت کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک قوت کے بارے میں۔ لیکن پاک روح اصل میں ہے کیا؟ اگر آپ انگلش بائبل پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاک روح کے لیے ایک ذات کا لفظ استعمال ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک چیئر کے لیے جو ہے اگر انگلش میں ورڈ یوز کریں تو ہم ایٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بے جان چیز ہے۔ لیکن اگر ہم کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے یا کسی مرد یا عورت کے لیے کوئی لفظ یوز کریں گے تو ہم شی یا ہی یوز کریں گے۔ اگر کسی عورت کے بارے میں بولنا ہے تو ہم لفظ کون سا یوز کریں گے؟ شی۔ اور اگر کسی مرد کے بارے میں بولیں گے تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ہی۔ تو ایسے ہی پاک روح کے لیے اگر ہم کلام حق میں دیکھیں تو ہی کا لفظ استعمال ہوا۔ پاک روح کے لیے کوئی اس کا جس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ پاک روح کے لیے کلام مقدس میں ہی کا لفظ استعمال ہوا۔ اور پاک روح جو ہے وہ ایک پاور نہیں، قوت نہیں، بلکہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ لیکن کیا صرف پاک روح عید پینتیکوست کے دن ہی نازل ہوا؟ کیا اس سے پہلے پاک روح کا کوئی وجود تھا؟ یا عید پینتیکوست کے دن ہی صرف ہم پاک روح کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہم کلام حق میں دیکھیں عبرانیوں کے نام خط اور اس کے 9 باب کی 14 آیت میں دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کے نام خط اس کا 9 باب اور 14 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھیں، سنیں، سمجھے جانے پر خدا کی بات پر تو ہم سب کہیں گے آمین۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ ابھی ہم نے کلام حق میں پڑھا کہ پاک روح جو ہے وہ ازل سے ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو آپ کو اس کے پہلے چیپٹر کی 2 آیت میں لکھے گا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی۔ پاک روح جو ہے وہ صرف عید پینتیکوست کے وقت ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ازل سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ ہمارا ازلی خدا ہے۔ خدا بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں، یسوع کے بارے میں کہ وہ ازل سے باپ کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ اسی طرح کلام حق میں ہمیں ملتا ہے کہ پاک روح بھی جو ہے وہ ازل سے ہے۔ ازل سے مطلب جس کا کوئی شروع نہیں اور یہ ہمیشہ تک جو ہے رہے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن کیا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے کیا خدا بھی ہے؟ کیا پاک روح خدا ہے؟ ایک خدا کیا کام کرتا ہے؟ خدا چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے۔ کلام حق میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے جب کلام کیا تو یہ دنیا وجود میں ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا، اس نے اگر زمین کے جانداروں کو بنانا تھا تو زمین کے جانداروں کے لیے صرف بولا ہی تو وہ کیا ہوا؟ وجود میں آئے۔ اگر سمندر سے اس نے ہم کلام ہوا تو سمندر میں جتنے جاندار تھے وہ وجود میں آئے۔ تو خدا جو ہے وہ ایک کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے،
हम देखें अय्यूब की किताब उसका 33 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया। और उसके बाद अगर हम ज़बूर 104 में देखें उसके 30 आयत में तो लिखा है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। अगर हम देखें तो कलाम हक में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदा का पाक रूह जो है वो तख्लीक भी करता है, वो पैदा भी करता है और वो जो है जिंदगी भी बख्शता है। वो हमारे साथ तो होता है लेकिन इसके साथ वो जो है क्रिएटर भी है, वो बनाने वाला भी है, वो पैदा करने वाला भी है। तो कलाम हक में अगर हम एक जगह पर देखें, ज़बूर 33 मेरे साथ निकालिएगा, ज़बूर 33 उसके 6 आयत में लिखा है, जिस किसी को मेरे पढ़ने में रहनुमाई करे। ज़बूर 33 उसकी 6 आयत। खुदा के कलाम में मशहूर रकम है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आमीन। कलाम हक में जैसे अभी भाई ने पढ़ा कि आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। उसका मुंह का दम क्या है? ये उसका पाक रूह। कलाम हक में उसने देखा कि आसमान और उसका सारा लश्कर, उसमें फरिश्ते भी आते हैं, उसमें कायनात की हर एक चीज भी आती है, और ये सब किसने बनाया? खुदा ने बनाया। और ये उसके मुंह के दम से मुमकिन हुआ, ये उसके पाक रूह से मुमकिन हुआ। इसी तरह हमें कलाम हक में एक और हवाला मिलता है। अगर हम अय्यूब 26:13 में देखें तो वहां लिखा है, उसके दम से आसमान आरास्ता होता। खुदा के रूह से जो है हर एक चीज जो है वजूद में आती, वो कहता है और हो जाता है। खुदा का रूह जो है वो एक जात है, वो एक हस्ती है, और वो असल से खुदा के साथ था, और वो बनाने वाला और वो तख्लीक करने वाला भी है। अगर हम खुदावंद यीशु की बात करें तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 7 से 15। यहाँ पर आपको उस वाक़े के बारे में मिलेगा जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ ईद फसह मना रहे थे। आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खा रहे थे और यीशु ने अपने शागिर्दों से बहुत सी बातें की। और इसी दौरान यीशु ने अपने शागिर्दों से वो अजीम वादा किया जिसकी कलीसिया आवाज में मुजद्दिद है। और यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा, मेरे साथ देखिएगा, जिस किसी को मेरे पढ़ने में रहनुमाई करे। यूहन्ना 16 बाब उसकी 7 से 15। दाऊद के पाक कलाम में ये लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी हुए हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए कि मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। आमीन। आमीन। सब कहेंगे आमीन। तो मेरे जैसे हमने कलाम हक में पढ़ा कि यहाँ पर वो हमें अजीम वादा मिलता है जो
जो यीशु ने अपने शागिर्दों से किया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ और मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। क्योंकि पाक रूह जो है वो पहले भी अगर हम देखें, पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो खुदा के बंदों पर जो है नाजिल होता, लेकिन वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए खुदा का पाक रूह पर नाजिल होता। अगर हम समसून के बारे में देखें तो कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह जो है जोर से उस पर नाजिल होता, और कैसे वो हजारों हजार लाखों जो है लोगों को जो है, और जो बनी इस्राइल के दुश्मन होते थे उनको एक ही दफा में जो है हलाक कर देता। इसके बाद हमें जदाऊन का जिक्र मिलता है, हमें साउल के बारे में मिलता है, एलिया के बारे में मिलता है, अलीशा के बारे में मिलता है, हमें अनगिनत खुदा के बंदों के बारे में मिलता है कि कैसे खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में काम करता है। और खुदा का पाक रूह उन पर जब नाज़िल होता तो वो एक मखसूस मुद्दत के लिए होता, एक वक्त के लिए होता। अगर आप देखें तो समसून के जब उसके बालों को काट दिया गया तो खुदा का रूह जो है वो उससे जुदा हो गया, लेकिन दोबारा जब उसने खुदा से मिन्नत की तो खुदा का रूह जब उस पर नाजिल हुआ तो इस घर में वो था जहाँ पर उसको तमाशा के लिए लाया गया। उसने उसके जब सतूनों को गिराया तो वहाँ पर जितने लोग क्या हुआ उसी वक्त हलाक हो गए। और कलाम में लिखा है जितने लोगों को उसने अपनी सारी जिंदगी में हलाक किया उनसे ज्यादा। और ऐसे खुदा का पाक रूह जो है जदाऊन पर नाजिल हुआ, और जब उस पर नाजिल हुआ तो वो मिद्यानियों से लड़ा और उन पर खुदा के पाक रूह ने उसे फतह बख्शी। इस तरह खुदा का पाक रूह जो है वो एलिया पर नाजिल होता, अलीशा पर नाजिल होता, और पुराने अहदनामे में देखें तो बड़े बड़े काम होते। लेकिन अगर हम नए अहदनामे में देखें तो पाक रूह के बारे में यीशु का वादा था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। दूसरे का मतलब है हूँ मेरे जैसा। अगर आप देखें, अगर हम कहें कि हमारी जो एक जो है गांव की साइड एक जैसी है तो दूसरी भी वैसी ही है। और पाक रूह जो है उसके लिए अगर दूसरा मददगार है तो इसके मतलब जो है हूँ खुदावंद यीशु जैसा। उसमें सारी सिफात सारे काम जो है वो खुदा जैसे हैं, क्योंकि वो खुदा जैसे यीशु हमारा खुदावंद है वैसे पाक रूह भी खुदा। और जब ये पेंटिकोस्त का दिन आया, अगर हम लूका के इंजील में देखें तो यीशु ने कहा अपने शागिर्दों से, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले आयत में यहाँ पर बड़ा खाना में यरूशलेम में ठहरे रहे। और ऐसा ही हुआ 40 दिन के बाद इसे क़यामत तक मसीह के 40 दिन बाद जब यीशु आसमान पर उठाए गए तो क्या हुआ, 10 दिन तक शागिर्द जो है वो दुआओं की हालत में खुदा की हम्द करते हुए जो है वो वाला खाना मिले। और क्या हुआ, 10वें दिन क्या हुआ, 50वें दिन क्या हुआ, 50वें दिन खुदा का रूह जो है वो आग के शोला की फटती हुई आवाजों के साथ उन पर नाजिल हुआ। और इस वक्त जो खुदा का पाक रूह जो था वो जब नाजिल हुआ तो वो इस तरह नहीं जिस तरह पहले उनके लोगों पर नाजिल होता। खुदा का रूह ऐसे उन पर नाजिल हुआ, उस 120 की जमात पर ऐसे नाजिल हुआ कि अब तक खुदा का रूह खुदा की कलीसिया में काम करता है। हालेलुया। और अब तक जो है वो खुदा की कलीसिया में जो है दुनिया के आखिर तक जो है खुदा का पाक रूह काम करता रहेगा। और अगर हम कलाम हक में देखें तो हमें उसके बाद के वाक़यात मिलते हैं। खुदा का पाक रूह क्या करता है, वो हमें दलेरी देता है। जब तक तुम्हें आलने वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहे। खुदा का पाक रूह हमें क्या देता है, दलेरी देता है, हमें कुव्वत देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। हमारे अंदर को जो है अगर हमारे अंदर डर है तो उसको खत्म करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम्हें खौफ की नहीं बल्कि दलेरी की रूह मिली, हमें जो है हिकमत की रूह मिली। और अगर देखें तो शमौन पतरस की जिंदगी से हमें जो है एक सबक मिलता है। वो शमौन पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, वो शमौन पतरस जो सलीब के पास मौजूद ना था, वो शमौन पतरस जो गतसमनी से जो है यीशु को छोड़कर चला गया। दूसरे शागिर्द भी इसी तरह यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन जब खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ तो उसने